Hi everyone, welcome to this physics video, and today we will have some question, two question that I'm going to solve. It is based on this Weierstrass law. As yesterday we were having this topic here related to the Weierstrass law, which is helping us to find out the magnetic field due to small elemental length at any point. Okay, so therefore let us to solve a numerical which is based on it. Very first question is there. What is the intensity of magnetic field? Intensity, strength, or simple magnetic field. Okay. So all have same meaning. ठीक है, तो intensity, strength और simple magnetic field. So they have same meaning. So over here they are asking us how much is the strength of magnetic field at any point on a thin conductor itself due to a current carried by it. Okay. सो वी आर हैविंग ओवर हेयर कि हमारे पास क्या करना है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बतानी है उस पॉइंट के ऊपर जो थिन कंडक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है. ठीक है. सो दिस थिन कंडक्टर इट इज कैरिंग द करंट. फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस सपोज दैट this is from our Weierstrass law. Letter we have, this is that conductor through which the current is passing. Okay. This was I, and yesterday as I told you that we have to suppose this small length. So this is small length, it is elemental length, and from it at an angle we are supposing this was the point P, and it was at r distance from this conductor. So how much is that strength of the magnetic field at this point? So we said over there, this strength of the magnetic field, it was mu naught upon my 4 pi I dl sine of theta upon my square of that distance which is between conductor and that point P. Okay, now according to this question, that uh, at any point on a thin conductor, so where they are saying that where is this point P, it is going to be on a thin conductor. So it means to say that according to question, if I will draw this diagram again, there is this current which is passing through this conductor xy, and this is that small elemental length which is of dl, and here the point is on this conductor. This is the point P which is on the conductor. Okay, so you will find over here how much is the angle between that elemental length and this point P. So there we are finding this angle is 0 degree between this DL and that R. ठीक है, तो जो R था हमारे पास वो क्या होता था, P और उस एलिमेंटल लेंथ के बीच का गैप. सो देयरफॉर दिस इज 0. देन we will have this sine 0 degree, its value will be 0. So therefore we are getting this magnetic field will also come as 0. Okay, so what will be the strength of the magnetic field on that point? It will be 0. Okay, now let us to start over here. This is second question. A current element 5D L vector. Okay, so is at 0 0. So x y z that coordinates that are 0 0. So along x axis. ठीक है, तो एक करंट एलिमेंट जो है वो 5D L वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. कहाँ पर है? एट द ओरिजिन 0 0 0 के ऊपर. सो इफ डी एल इज ऑफ 10⁻². सो ओवर हेयर व्हाट इज गिवन टू अस, जो एलिमेंटल लेंथ है वो कितनी है? -2 मीटर की है. ठीक है. देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर. ठीक है, तो ये किसके अलॉन्ग है? इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट इज सेट ओवर हेयर. ठीक है. नाउ देयर वी आर टेकिंग दिस इज दैट पोजिशन जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. इट इज that of 0.25. Okay, this is the position over there. What it is said that in which direction it is given to us along y axis. ठीक है, तो y axis है, so therefore in vector I am going to take this is y axis में क्या किया जाता है, जो j यूनिट वेक्टर लिया जाता है. एंड दिस एलिमेंटल लेंथ विच इज गिवन टू अस, सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. किसके अलॉन्ग है ये? एक्स एक्सिस. तो आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है? आई. ओके, दिस इज ओवर हेयर आई यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में मैंने एलिमेंटल लेंथ को और उसको शो कर दिया. एंड वन अदर थिंग इज गिवन टू अस, दिस इज करंट एलिमेंट.
तो करंट एलिमेंट हमारे पास कैसे लिखते थे हम? सो दिस करंट एलिमेंट इट वाज आई डी एल वेक्टर, ठीक है, दिस वाज करंट एलिमेंट. Now over here you will find that how much is this I. तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस वन इट इज़ गिवन टू अस 5dl वेक्टर, ठीक है. सो इट मीन्स जो करंट है यहाँ पर वो कितना है, 5 एम्पियर का बन गया, ठीक है. तो ये जो डायरेक्शन ऑफ लेंथ है, एलिमेंटल लेंथ, वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन में है. इसका मतलब हुआ, इफ़ आई विल शो दिस वन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, हेयर इट इज़ दिस एलिमेंटल लेंथ. ये मैंने एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ ले ली, ठीक है. तो जो हमारे पास इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज़ द करंट डायरेक्शन विच इज़ गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है. ऑलरेडी दे सेड दैट. तो करंट एलिमेंट जो हमारे पास वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 0 है, ठीक है. और इससे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस है, ठीक है. तो इससे वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस गिवन टू अस, दिस इज आर, एंड हाउ मच इज दैट डिस्टेंस, इट इज़ ऑफ 0.25, ठीक है. तो इस डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी लाई कर रहा है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट दिस स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. नाउ चेक ओवर हेयर, ये जो एलिमेंटल लेंथ है और जो हमारे पास ये जो यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का एंगल फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज ओवर हेयर दैट ऑफ 90 डिग्री. इफ़ यू विल चेक दैट वन, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कितना एंगल बन गया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है. सो नाउ लेट अस टू लुक ओवर हेयर, जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर, in vector form, how do we write this magnetic field due to this small current element? So this is given by mu naught upon my 4 pi that of I dl vector cross r vector upon में r cube. This is over there, ठीक है. नाउ हेयर हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या था, वो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ किया गया था. तो इसकी वैल्यू हम क्या यूज़ करते थे, 10⁻⁻7 यूज़ करते थे, ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आई. तो आई की वैल्यू क्या यूज़ की गई यहाँ पे, करंट कितना था, 5 एम्पियर का था. सो दिस इज 5, ओके. हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ डी एल वैक्टर, ठीक है. तो डी एल वैक्टर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने शो किया है. डी एल वैक्टर कितना है, 10⁻⁻2 मीटर. किस डायरेक्शन में है, ये आई डायरेक्शन में है, ठीक है. सो पुट द वैल्यू ओवर हेयर, इट इज़ 10⁻⁻2 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है. नाउ देयर इज क्रॉस प्रोडक्ट, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज देयर एंड आर यूनिट वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, ठीक है. तो जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इट इज़ अलोंग जे एक्सिस, तो इट इज़ हाउ मच, 0.25, it is 0.25 j unit vector, okay. This is inside the bracket and upon में that of r का cube. So magnitude of r, what it will come, the magnitude of r will come 0.25, okay. Then we will have over here, this is equals to then that of, sorry, we have to take over here this r cube. So this r cube will come over there then 1.56, this is r cube, ठीक है. तो r की वैल्यू ऑलरेडी है, उसका क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ देयर आफ्टर इन द कैलकुलेशन यू विल गेट दैट, यहाँ पर हमारे पास 10⁻⁻7 है, इंटू 5 है, इंटू 10⁻⁻2, टेक इट आउट, दिस 0.25 take it out, and we will have over here I यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर, ठीक है. आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट. सो दैट्स वी गेट दिस एज, जो क्रॉस प्रोडक्ट है आई क्रॉस जे, वो क्या हो जाता है, के यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वाइट-सावर्ट्स लॉ में, वो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते थे. इट इज़ ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियो. देयरफॉर यहाँ पर आई क्रॉस जे दिस इज इक्वल टू के. इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पी के ऊपर, दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है. तो ये किसके अलोंग होगी, इस जेड एक्सिस के अलोंग होगी, ओके. नाउ देयर वी विल फाइंड दिस एज, ये माइनस की 7 पावर है, ये माइनस की 2 पावर है, तो इट इज़ गोइंग टू बी दैट ऑफ 10⁻⁻9 एंड 25 5 125,
decimal is over here, and divide it is 1.56, and it is k unit vector. And further on dividing this one over here, we are getting it is 8.0 into 10 to the power minus of 10. So this is magnetic field in Tesla, and it is going to be along k axis, sorry, z axis over there. So this is that magnetic field. Okay, so what is the direction of the magnetic field? It is along z axis. How we have determined this one? So it is with the help of this cross product we have determined. Okay, so this is the way of that solving the question over here. Okay, now this second question you can also solve it with the other method. ठीक है, दूसरा मेथड भी हमारे पास था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म का यूज़ किया. सो फाइनली आई गॉट ओवर देयर कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ दोनों मेरे पास आ गई. ठीक है, नाउ इफ़ आई विल यूज़ द स्केलर. ठीक है, तो चेक ओवर देयर हाउ मच इज़ द एंगल. इट इज़ 90 डिग्री. किसके बीच में? एलिमेंटल लेंथ और इस जो पोजिशन के बीच में एंगल है. ठीक है, सो दस इन स्केलर फॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला ओवर देयर. नाउ इट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस? इट इज 10 की पावर माइनस 7. हाउ मच इज द करंट ओवर देयर? इट इज 5. ओके, हाउ मच इज दैट एलिमेंटल लेंथ? तो एलिमेंटल लेंथ ऑलरेडी इट इज सेट ओवर हेयर दैट ऑफ 10 की पावर माइनस 2. ठीक है, तो दिस विल बी ओवर हेयर 10 की पावर minus of 2. And how much is the angle between that elemental length and position? It is that of 90 degree. And r का square, r square means to say over there it is 0.25 का square. ठीक है, पोजीशन हमारे पास क्या आई थी? 0.25 थी. सो thus we get this one in the solution. Then you will find as 10 की पावर minus of 9, this is over here, into this is 5. Sin 90 is 1 upon में 0.25. So 0.25 into 0.25 this is, and this will cancel to this value over here, and we will have this is as if I will remove the decimals of this, then you will have over here 2 digit of this one. So 10 की power 2 will come to the numerator, and 2 digit of this one. So over here this will cancel, so it will come in the divide 125. Okay, so then we will have it is minus 9 and it is plus 4, so it is minus of 5 and 1 by 125. Now if we will divide this, okay, so this will come over here that of 8.0 into 10 की power minus of 10 Tesla. Okay, this is that magnitude of the magnetic field. What direction, what will be the direction? ठीक है, तो डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना था, या तो आप डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यूज़ करते. ठीक है, तो डी एल एलिमेंटल लेंथ किस तरफ बताई थी? इट वाज अलोंग एक्स एक्सिस. और जो पोजीशन वेक्टर था, ये जो पोजीशन थी वो किसके अलोंग थी? वो वाई एक्सिस की. तो आई क्रॉस जे, सो दैट इट इज़ के यूनिट वेक्टर. तो ये के यूनिट वेक्टर आ गया था. तो दस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अलोंग जेड एक्सिस, that is z axis. Okay, so in this way you can also perform, and you can also use this right hand thumb rule. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से भी आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हाउ टू यूज़ योर राइट हैंड ओवर हेयर. तो इस जगह पे राइट हैंड कैसे यूज़ करना है? सो सी ओवर देयर द करंट इज़ गोइंग टू वर्ड राइट साइड. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोज दैट दिस इज़ द कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर करंट कैसे जा रहा है? राइट साइड को जा रहा है. ठीक है, तो थंब रूल में क्या करना है, आपने इसको होल्ड करना है. ठीक है, और अपनी फिंगर को कर्ल करना है. सो जस्ट टू चेक ओवर देयर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, इस स्पॉट के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास किस तरफ लाई कर रहा है? ऊपर की तरफ है ना. ठीक है, तो इसलिए जैसे ही आप इस बॉल पेन को होल्ड करते हो, तो इस जगह पर आपकी फिंगर क्या होती हैं? अपवर्ड आती हैं. फिर उसको यहाँ पर जो है ये इस तरह से कर्व कर रही हैं. ठीक है, तो इट इज़ कर्विंग ओवर हेयर. सो यू विल फाइंड दिस वन कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और
हाँ, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी बन गई हमारे पास, वो थी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये उस राइट हैंड रूल से भी आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।